Good evening, ma'am. Good evening. Please ask your friends to come in as well. Okay, class, please take out your textbook, page number 53, and a pencil with you as well. सारिका, म्यूट करिए, माइक को ऑफ करिए. And unless and until I say, nobody will unmute themselves. What is work? Work is said to be done when force applied on a body moves it in the direction of force, or the effect of force is shifted at some other desired point, or direction of force is changed. Without energy, we cannot perform any work. Hence, it is rightly said, energy is the ability to do work. हाँ, तो वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज वर्क. कब हम बोलते हैं कि वर्क हुआ है? हम तब बोलते हैं वर्क हुआ है जब फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मैं बॉक्स लेके खड़ी हूं, तो अगर मैं एक बॉक्स लेके खड़ी हूं, ठीक है, पॉइंट ए पे, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? No, ma'am. No, एक सेकेंड. no, ma'am. No, ma'am. आप दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ. Yes, ma'am. तो अब देखिए, पॉइंट ए को हम ब्लैक से दिखा रहे हैं यहाँ पे. दिस इज पॉइंट ए, ठीक है, एंड दिस इज पॉइंट बी.
For example, I am standing on point A with the box. ठीक है? Now, I am applying a force in this direction to move the box from point A to point B. तभी हम कहेंगे जब वर्क कब होता है, जब when force is applied on a body, here the body is a box and it moves in the direction of force or the effect of force is shifted at some desired point or direction of force is changed. For example, अगर मैं पुश करूं इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां B पॉइंट तक, ठीक है, तो ही वर्क हुआ है कहलाएगा। अगर मैं ऐसा करूं कि ऐसा फोर्स यहाँ पर लगाऊं लेकिन अगर बॉक्स मूव ना हो तो इसका मतलब है कि मैंने कोई वर्क नहीं किया है। If it is not moving at a place, then there is no work. But if it is moving from one place, that is from point A to point B, then you can say the work is done. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next point. Why Yes. we need machines? Why we need machines? तो मान लीजिए अगर गीतांजलि और तनीषा यहाँ पे खड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल गीतांजलि और तनीषा यहाँ पर खड़े हैं, गीतांजलि इज एट पॉइंट G and Tanisha is at point T. ठीक है? Now they have a green ball with them. Both of them have a green ball. Now Gitanjali and Tanishka have to move this green ball to point A. ठीक है? दोनों को मूव कर रहा है एट पॉइंट ए इस बॉल को लेके, लेकिन व्हाट हैपेंड इज गीतांजलि यूजेस अ मशीन, फॉर एग्जांपल अ ट्रॉली। ट्रॉली देखा है? ट्रॉली देखा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ Yes, गीतांजलि, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, now the Gitanjali uses a trolley to move this, whereas Tanishka is using hands. समझ में आ रहा है? Bare hands, मतलब अपने हाथों से मूव करने की कोशिश कर रही है। तो किसका काम जल्दी होगा? Trolley. ट्रॉली, यानी गीतांजलि का काम जल्दी होगा, राइट? Yes. Yes, ma'am. This Yes, is ma'am. Yes. so Yes, ma'am. point 1 सबसे पहले it decreases time. समझ में आ रहा है? Why do we need machine? Because it decreases time. Second, it also decreases effort. अब गीतांजलि और तनिष्का में किसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? तनिष्का को, राइट? So we need machine because it decreases time and effort. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. And Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. and it increases Yes, ma'am. efficiency. Increases efficiency. मान लो गीतांजलि ने ट्रॉली से इस बॉक्स को इस पॉइंट से ए पॉइंट पे ले गई, वेयरएज तनीषा हाथों से इस पॉइंट को ए पॉइंट पे ले जा रही, तो क्या हो सकता है कि ये यहाँ पे टूट जाए, ये बॉल रास्ते में, राइट? Yes. वेयरएज गीतांजलि, Yes, ma'am. वेयरएज गीतांजलि के केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो इसका मतलब वी नीड मशीन बिकॉज इट डिक्रीजेस टाइम, इट डिक्रीजेस एफर्ट एंड इंक्रीजेस एफिशिएंसी। समझ में आ रहा है ये वर्ड का मतलब? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Next topic is Yes. simple machines. A simple machine is a basic, अब इसको underline करिए. A simple machine is a basic mechanical device that increases the size of force or changes the direction of force or both. ये first 3 line को underline करिए. Next, there are 6 kinds of simple machine used by us in our daily life. They are lever, inclined plane, wedge, screw, wheel and axle, and pulley. Next is simple machine makes a job easier to do because they allow a small force called the effort to overcome the load. अब हम लोग वही एग्जाम्पल लेते हैं गीतांजलि और तनिषा का. इसमें से जिसने ट्रॉली का यूज किया, ट्रॉली इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मशीन. तो इसका मतलब क्या हो गया? इट बिकॉज दे अलाउ अ स्मॉल फोर्स टू ओवरकम द लोड. अब आराम से गीतांजलि स्मॉल धीरे, अगर वो धीरे से भी उसको ढकेलेगी तो वो आराम से चला जाएगा ट्रॉली, बिकॉज इट हैज व्हील्स इन इट. वेयर एज तनिषा को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उस बॉल को मूव करने के लिए. ठीक है? Yes, ma'am. अब नेक्स्ट फिगर Yes, 4. ma'am. फिगर 4.4 देखिए, पेज नंबर 55. देख रहे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now Yes, ma'am. we have a load Yes, ma'am. here. It is an example of lever, which is a simple machine. But some terms used to study. सबसे पहला है our fulcrum. So this triangular shaped thing is known as fulcrum. इसको देख रहे हैं? I will write it F. Fulcrum. What is fulcrum? A fixed point about which a machine turns while doing the work. A fixed point, ये fixed point है. यहाँ इस कोई भी point, जरूरी नहीं कि fulcrum आपका triangle ही हो, कोई भी fixed point which a machine turns while doing work is called fulcrum. अब इसका another example क्या होता है? हम देखते हैं गाड़ियों में चक्के लगे हैं, यहाँ पे व्हील एक्सेल लगी हुई है और यहाँ पे चक्का लगा हुआ है. ऐसा होता है? होता है कि नहीं होता है भाई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. होता है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. टॉय कार्स में भी देखा होगा आपने, ऐसे ही लगा रहता है पार्ट्स उसका, राइट? तो ये जो पॉइंट है, Yes, ma'am. ये वाला जो ब्लू वाला जो पॉइंट दिखा रही हूँ, फिक्स्ड पॉइंट है जहां से वो जुड़ा हुआ है. दिस पॉइंट इज नोन एज फुलक्रम. ठीक है? समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट इज लोड. अब लोड कहाँ है बता सकता है कोई मेरे को? Yes, इस ma'am. पिक्चर में लोड किसको बोल रहे हैं? Ma'am, that circle in yellow color. हाँ, गुड. That yellow Ma'am. हाँ, that ball in yellow color is known as load. Load. this is Ma'am, load. load. Donated with L. ठीक है? समझ में आया? अब एफर्ट yes, कहाँ ma'am. लगेगा? एफर्ट किस तरफ लगेगा? एफर्ट किस तरफ लगाएंगे? इसको अगर हम लोग को ऊपर करना है तो एफर्ट किस तरफ लगाएंगे? Ma'am, on the left side. Ma'am, on left नीचे side. की तरफ. हाँ, नीचे की तरफ एफर्ट Ma'am, on लगाएंगे. left side. From Left side. Ma'am, on left side. गुड. तो हम लोग इस तरफ ई लिख दें. Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. next- Yes, ma'am. हाँ, नेक्स्ट देखिए वेलोसिटी रेशियो VR. The ratio of velocity of effort to the velocity of load is termed as velocity ratio. VR equals to velocity of effort by velocity of load. इसको अंडरलाइन कर लीजिए. VR equals to velocity of effort by velocity of load. ये फॉर्मूला याद करने का है, स्टार मार्क कर दीजिए, इंपॉर्टेंट है.
Next is mechanical advantage. The ratio of the force produced by a machine to the ratio of force applied, it is known as mechanical advantage of machine. ये समझ में आया ये वाला डायग्राम? Yes, ma'am. अब देखिए, Yes, ma'am. ये आपका इलेक्ट्रिकल बोर्ड है, या आपका एक मिक्सर ग्राइंडर कनेक्टेड है, ठीक है? ये आपका मिक्सर ग्राइंडर यहाँ से कनेक्टेड है, समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई भी सामान जिसको आपको पीसना है, दैट इज देयर. अब देखिए, मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन टू द फोर्स ऑफ अप्लाइड टू इट. हम यहाँ पे उसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, हम यहाँ पे उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे वो सामान को पीस रहा है, मिक्सिंग डोनेटेड विद एम, ठीक है? लेकिन जरूरी नहीं है कि हम अगर इसको 12 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो ये भी 12 वोल्ट का काम करे, क्योंकि जब हम मिक्सी में सामान पीसते हैं तो आवाज निकलती है, साउंड निकलता है, Yes, ma'am. Yes, निकलता है Yes, ना? ma'am. और अगर फिर आप बंद Yes, करें ma'am. मिक्सी को, अगर आप हम लोग बंद करें मिक्सी को तो मिक्सी गर्म भी रहती है. Yes, ma'am. छुप देखा, Yes, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. तो क्या होता है, ये इसके कारण कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी, जो द फोर्स प्रोवाइडेड बाय अ मशीन टू द फोर्स अप्लाइड टू इट, द फोर्स प्रोवाइडेड बाय द मशीन एंड फोर्स अप्लाइड बाय द मिक्सर ग्राइंडर ब्लेड टू ब्लेंड द सब्सटेंस इन इट, इस रेशियो को मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं. अब एक सेकेंड आगे पढ़िए तो आपको और क्लियर हो जाएगा. इनपुट, द वर्क डन ऑन अ मशीन इज टर्म्ड एज इनपुट, यानी इनपुट यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड. समझ रहे हैं? वर्क क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड, हम उस पे द वर्क डन ऑन अ मशीन अब is called as input, whereas the work done by the machine, यानी जो पीस के सामान निकालेगा मिक्सर ग्राइंडर, that is known as output. समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Similarly, efficiency. Yes, ma'am. Efficiency, the ratio of work done by the machine to the work done on the machine, that is efficiency denoted by E. एक सेकेंड. Okay, efficiency E equals to output by divided by input. इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, स्टार मार्क डाल लीजिए. efficiency equals to work done by the machine by work done on the machine. ठीक है? अब ये वाले टॉपिक को छोड़ दीजिए, कंसेप्ट ऑफ एन आइडियल मशीन. आप नेक्स्ट टॉपिक पे जाइए, लिवर. अ लिवर इज probably the simplest machine that we are most familiar with. It is a rod which can turn about the fulcrum. An object to be moved is called load. A force applied to move the object is called effort. ये सब कुछ बता चुकी हूँ मैं. The distance between the fulcrum to the load. अब ये बताना है कि हम फिर से वही वाला डायग्राम देखेंगे. ये आपका फुलक्रम, ये आपका लोड यहाँ पे, और यहाँ पे आपका एफर्ट जो कि नीचे की तरफ लग रहा है E, और यहाँ पे ये L आपका, ठीक है, लोड. अब देखिए ये आपका फुलक्रम पॉइंट है. अब यहाँ से देखिए जो आपका द डिस्टेंस फ्रॉम द फुलक्रम टू द लोड, यानी ये वाला डिस्टेंस इज कॉल्ड लोड आर्म. समझ में आया क्या है लोड आर्म? समझ में आया क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब द डिस्टेंस बिटवीन द फुलक्रम टू द पॉइंट ऑफ, Ma'am. हाँ
यस प्लीज, कोई डाउट है? नो मैम। हाँ, तो अब द डिस्टेंस बिटवीन फुलक्रम No, ma'am. एंड, हाँ, द डिस्टेंस बिटवीन द फुलक्रम टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, यानी यहाँ पे एफर्ट लगा रहे हैं हम लोग इस पॉइंट पे, इज नोन एज पावर आर्म और एफर्ट आर्म। सो क्लियर है ये? what is effort arm and what is load arm? Yes, Yes, ma'am. ma'am. How is lever balanced? How much Yes, force is ma'am. needed to lift a load depends on load arm and the effort arm. अब मेरे को ये बताइए, यहाँ पे ये जो लोड है 12 kg का लोड है, पहली बात, केस 1, ठीक है। अब दूसरे केस में इसी की जगह 2 kg का लोड रखा है, तो किस केस में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? यहाँ पर किस केस में आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा? 12 kg. 12 kg, गुड। 12 kg. 12 kg. हाँ, तो यही प्रिंसिपल है। 12 kg. You can turn the page number 56. If the load is near the fulcrum, a lever is balanced when load into load arm equals to effort into effort arm. इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ लीवर। समझ में आया कहां से अंडरलाइन करना है? If the load is near the fulcrum, a lever is balanced when load into load arm equals to effort into effort arm. This is called principles of levers. ठीक है। अब a weighing scale or a balance, Yes, ma'am. हाँ, a weighing scale or a balance works on the principle of lever. weighing scale मतलब जो हम लोग सुना, आप लोग कभी गोल्ड लेने गए हो अपने मम्मी पापा के साथ? Yes, ma'am. Yes. हाँ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप लोग वहाँ गए हो सब्जी लेने, वहां पे तराजू में तोलते हैं सब्जी को या जो भी फल वल को, Yes, ma'am. देखिए हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. That is Yes, ma'am. जो गोल्ड शॉप में रहता है उसको इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस बोलते हैं, और जो ऐसे ही फल वल की दुकान में रखता है उसको वेइंग स्केल बोलते हैं। तो दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन लीवर्स with equal arms. The principle of lever is also used to design different types of weighing machine. For example, a steel yard and a platform balance. The steel yard is a lever of class 1 whose one arm is much smaller in comparison to other. The balance is supported at the fulcrum by means of a hook. The arm from which the unknown load is suspended is very small. Movable standard weight slides over the arm, which is usually graduated in kilograms. Thus, a heavy load placed at very small distance is balanced with a small weight placed at a large distance. मैकेनिक ये वाला जो फॉर्मूला है, therefore mechanical advantage equals to effort arm by load arm, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। अब देखिए क्लासेस ऑफ लीवर 1, माइक ऑफ कर लीजिए अपना, जो भी माइक ऑन करके रखा हुआ है। सी, अब देखिए यहाँ पे लोड है, यहाँ पे फल्क्रम है और दिस इज एफर्ट। ठीक है, ये टाइप ऑफ लिवर्स बता रहे हैं हम, क्लास लिवर 1। तो देखिए व्हेन द लिवर इन विच फुलक्रम इज इन बिटवीन द एफर्ट एंड द लोड आर कॉल्ड एज लिवर ऑफ क्लास 1। देखिए जब लोड और एफर्ट के बीच में ही, डायरेक्टली बीच में ही अगर फुलक्रम है, दैट इज नोन एज क्लास 1 लिवर। इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, वो जो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं पेज नंबर 56 पे, अ सीसॉ, अ पेयर ऑफ सीजर, अ बीम बैलेंस, टिन shears, द ब्रेक्स ऑफ अ बाइक, द हैंडल ऑफ अ हैंड पंप, क्रोबार्स एक्सेट्रा। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब
नेक्स्ट देखिए क्लास ऑफ लिवर 2, व्हेन फुलक्रम इज प्लेस्ड इन बिटवीन the liver in which load is in between the fulcrum, यानी लोड यहाँ पे रखा हुआ है, लोड is donated with this and effort आपका ऊपर लग रहा है और यहाँ पे आपका फुलक्रम है. फॉर एग्जाम्पल इन व्हील बैरोज, देख रहे हैं एग्जाम्पल, देख रहे हैं फिगर 4.10. देखिए नट क्रैकर को देखिए या बॉटल ओपनर या व्हील बोरो को. नट क्रैकर को देखिए फुलक्रम कहाँ है, लोड और एफर्ट के आगे है, दिख रहा है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और एफर्ट पीछे Yes, लग रहा ma'am. है, लोड इन बिटवीन, दैट इज नोन एज क्लास ऑफ. उसका भी एग्जाम्पल को अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, मैं बता रही हूँ. ये एग्जाम्पल्स ऑफ लिवर ऑफ क्लास 1, 2 एंड 3 या फिर डिफरेंस बिटवीन लिवर्स ऑफ क्लास 1, 2 एंड 3, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. और अभी अगर समझ जाएंगे तो फिर आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओनली यू हैव टू डू रिविजन. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास 2. अंडरलाइन कर लीजिए एग्जाम्पल्स को, नट क्रैकर, व्हील बोरो, बॉटल ओपनर, तीन एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए सभी के. नेक्स्ट इज लिवर ऑफ क्लास 3. The liver in which effort is in between the fulcrum and the load. For example, this is your liver and there is your fulcrum and effort बीच में लग रहा है and load is at the end. समझ में आया? This is load, this is load, this is effort and that is fulcrum. अब इसका कैसे एग्जाम्पल, इसका क्या होगा एग्जाम्पल, पेज पलटिए, पेज नंबर 58. Examples like forceps, pair of tongs, fish rod. देखिए फिश रॉड को देखिए, लोड कहाँ है, आखिरी में है. Yes, ma'am. Yes. एफर्ट ऊपर Yes, चला ma'am. है Madam. और एट द Yes, एंड ma'am. फुलक्रम है. समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. एग्जाम्पल्स को अंडरलाइन कर लीजिए. Yes, ma'am. From next class, this will be all for today. From next class आपकी क्लास A, B, C तीनों एक साथ होगी. So we will start from inclined planes. परसों आपकी क्लास है, परसों है ना, परसों बताया ना डेट मैंने, मैम कल भी है. कल भी है ना. हाँ, तो कल आपकी क्लास होगी तीनों Yes, सेक्शन के ma'am. साथ. तो हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे ये वाले क्लासेस ऑफ लिवर्स को और फिर उसके बाद इंक्लाइंड प्लेन. अभी एक वीक आपकी ऐसी ऑल्टरनेट क्लासेस चलेंगी बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट द सिलेबस. आपकी जो नॉर्मल क्लास जो वंस अ वीक है उसमें भी मैं आपको वीडियोस वगैरह भेजूंगी बिकॉज क्योंकि उस वक्त नेट अच्छा नहीं चलता कई लोगों का, इसलिए मेरे को रिक्वेस्ट मिली है कि आप थोड़ा शाम को ले लीजिए, इसलिए मैं अभी ले रही हूँ क्लासेस. ठीक है, किसी को कोई परेशानी? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. PM को है ना? No, ma'am. हाँ, 6 PM टाइमिंग्स मैं आपको बता दूंगी कब कब का रहेगा. ठीक है, नहीं तो 7:30 आपका मैक्स रहेगा ही रहेगा क्लास, क्योंकि उसी वक्त मेरे को थोड़ा सा फ्री होती हूँ. बाकी सब क्लासेस का अगले दिन हम लोग का क्लास रहता है तो उसका हम लोग को मटेरियल्स रेडी करना पड़ता है. ठीक है, समझ में आ गया? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एनी डाउट टिल नाउ अगर आपको है? देखिए नेक्स्ट क्लासेस से मैं आपको ये बता दूंगी कि आपको बीच में Which time you will take your class? 7:30. नेक्स्ट क्लासेस से आप लोग एक कुछ बातों का ध्यान रखिए, माइक ऑफ रखिए अपना, क्योंकि हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है लेकिन समझना भी है. माइक ऑफ रखिए. अगर आपको कोई डाउट आता है, जैसे अभी आपने जो भी पढ़ा उसमें अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे अगले दिन या उसी दिन क्लास खत्म होने के बाद व्हाट्सएप करिए कि मैडम दिस इज द टॉपिक, आई हैव नॉट अंडरस्टूड दिस टॉपिक, प्लीज एक्सप्लेन इट टू मी अगेन. मैं नेक्स्ट क्लास में सभी को वो टॉपिक फिर से पढ़ा दूंगी. आपको समझ में आ रही है मेरी बात? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. और
और आप लोगों को अगर कुछ बोलना है, अभी तो आप लोग यस मैम म्यूट ऑन करके बोल रहे हो, नेक्स्ट क्लासेस से प्लीज डू नॉट डू दैट। अगर आपको कुछ बोलना है तो चैट सेक्शन, चैट भी है वहां पे, चैट में जाके यस नो आप बोल सकते हैं मुझे कि मैडम ये फिर से समझ में नहीं आया। मैं वही कह रही हूँ, हम लोग अभी थोड़ा नया है क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी के इशू होता है, इसलिए हम लोग आप प्रिफर कर रहे हैं कि हम लोग एक बार पढ़ा दें आपको टॉपिक, देन यू कैन आस्क अस डाउट ऑन व्हाट्सएप पर्सनली, ग्रुप में नहीं, पर्सनली आप हमारे नंबर पे जाइए, मेरे नंबर पे आइए और पर्सनली मेरे से पूछिए मैडम ये वाला जो क्लास, फॉर एग्जाम्पल मैम क्लास 3 लीवर मुझे नहीं समझ में आया, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Okay. Yes, So ma'am. this will be all for today. Okay, ma'am. If you have any doubt, WhatsApp me. I will explain it to the whole class tomorrow. Leave the meeting. Thank you. Thank you, ma'am. 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 Bye, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Leave the meeting. Please start leaving the meeting. Afsar Khan, please leave the meeting.